composition of function, right? So just we are going to start a new topic, composite function or composition of function. Let a non-empty set A, B, and Ci. This is set A, this is set B, this is set C. Any element is given in set A, and if I'm just operating the function f, so I'll get fx in set B, and if B to C, the operation of G is given, then I'm getting f of G. Or from A to C directly, I can say if element I'm taking x, then I'm getting G of fx. In this, x belongs to A, right? And some hx function is G of fx. Right? And this hx function is nothing but it's going from A to C, means the domain is A and codomain, all the elements in C. This is known as composition of function. Okay. Now, without any restrictions, if we are doing question such a way, fx is equal to x plus 1 and gx is equal to cos x. So f of gx is nothing but, right, what we have to do in place of x, I have to put gx, right? So this is gx plus 1 and this gx is cos x. So I'm getting cos x plus 1. That will be. Okay. So only you have to put or. This f of gx, we can also write this as f for, right? This is f of g, the for function. Okay. Now, a simple question, if I'm giving you f of 1 minus x upon 1 plus x is equal to x, right? F of 1 minus, obviously x is not equal to minus 1, right? Find f of fx. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good, everyone. So this is f of, right? First, you have to find fx, right?
So fx is, I guess you all are getting this, 1 minus x upon 1 plus x. So how I'm getting to 1 minus x upon 1 plus x, I'm putting as t. Right? So by componendo dividendo, you can find, so fx is equal to, or ft is equal to this value, right? And then again, I have to apply f of fx. So I guess you all are getting, just you have to put the value of fx in place of x, right? Yes, sir. Okay. Now, this is a simple question. Very good, everyone. Very good. Suppose fx is equal to ax plus b and gx is equal to bx plus a. A, b are positive integers. If f of g50 minus g of f50 is equal to 28, find possible value of a into b. This is one of the portion, like आईटी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा पोर्शन हो जाता है. एंड क्वेश्चंस के चांसेस हमेशा बने रहेंगे. सर ए इंटू बी की ए एंड बी? ए इंटू अच्छा. पॉसिबल वैल्यू मे बी दो तीन वैल्यूज आ रहे हैं, लाइक मोर देन वन वैल्यूज. वेरी गुड. यूज कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो. नॉट बैड. आरव थोड़ा और चेक करो. काव्यम, चेक योर कैलकुलेशन.
अभी लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन को अपना देखो, मे बी वेरी क्लोज, रिसर्व, थोड़े और अप्रोच, नॉट बैड, रिसर्व वेरी गुड, वेरी गुड, रिसिट पेनर, कैलकुलेशन और जाएंगे शायद, सी वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो सर दिस बस एक और मिनट। फॉर्मेट, ओके, f of gx and g of fx, राइट। मीनवाइल मैं तब तक थोड़ा से अपने लिए वर्क करके रखता हूँ। f of gx, f of gx, right? So I have to put this f of gx, right? So gx is bx plus a, right? So I have to put in place of x, I have to put bx plus a, to a times ax plus b plus b. This will be a square x plus ab plus b, right? Similarly, g of fx is b times ax plus b plus a. So this will be ab x plus b square plus a. Now I have to subtract for this, right? Okay. So what I'm getting, a square minus b square, first equation, and second equation, 50 of this, right, plus b minus a, right, that is equal to 20. I hope everyone is getting this, right? Sir, in the first equation, shouldn't it be a square plus abx? Yes, sir. ABA. The gx is bx plus a. Gx is okay, yes, yes, yes. So bx plus a, right? But okay, so this is no worry. A times of bx plus a plus b. Again, you are getting same thing now. A square. And this will be b square plus a. So you are getting same here, right? A b cancel out. So this is coming as this one. So AB is common out. So this is A plus B minus 1 is equal to 28. Right? So product of two number is coming as 28. How many options we have? Right? One number is odd, other is even. Right? A minus B and A plus B is given. So like I have option of 1, 28, 2, 14, and 4, 7. Right? So if I'll put the values, right, first as A minus B is equal to 1 and A plus B minus 1, obviously this will be greater, so this will be 28. So from these two, what I'm getting, add this to 2A minus of 2 is equal to 28, A is equal to 15. So B is equal to 40. So one of the values. Wow, very good. Very good, everyone. Right. So A into B is 210, first value. Secondly, I can say, right, A minus B is 2 and A plus B minus 1 is 14. Both the numbers are even, but the problem with this is, from this I'm getting A minus B is 2 and this is A plus B is 15. From these two values, I can say A and B are not coming as integer, right? If one is odd, other is even, so not possible in this case. But the third one again, right, we have option for 4 and 7.
right? So a minus b is equal to 4 and a plus b is equal to 8, right? So add this, so a is equal to 6, then b is equal to 2. So second of the product is what we are getting. So one of the product is 210 and second is coming as 12. I hope everyone is getting this, right? Not bad. ना कुछ नंबर 12 वाले आए, कुछ 210 आए, कुछ लोगों के दोनों आए, नॉट बैड, राइट? केवल इंटीजर्स पर काम करने की बात थी और तो जितने थे वो पूरे के पूरे वैसे ही ना, कोई इतनी बड़ी बात है। ओके ओके एवरीवन, कहीं कंफ्यूजन या डाउट? मेरे को नहीं लगता, राइट ना। Yes. सो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है कंपोजिशन, राइट? पहले तो उसे देख लें। कंपोजिशन में सबसे पहली प्रॉपर्टीज ये होती है कि FOG is not necessarily equal to this. GOF and FOG हमेशा दोनों सेम होंगे ये बोलना गलत है। हाँ, नहीं होंगे ये भी बोलना गलत है, राइट? नॉट ऑलवेज ट्रू, बट कभी ट्रू हो भी सकता है, राइट? सेकेंड, ये कंपोजिट फंक्शन जो होते हैं, जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होते हैं, दैट दे आर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है FOG ऑफ H। मैंने ये लगा, पहले इस पे ऑपरेशन लगाया, या FOG पर पहले ऑपरेशन लगाया फिर H पे लगाया, दिस इज राइट। आप ऑर्डर कभी भी चेंज कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर पे आप जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? कि आप ऑर्डर FOG ऑफ H कर लो, या पहले से बाद में जाओ या बाद से पहले में जाओ, तो कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? हाँ, थर्ड, डोमेन की अगर मैं बात करूं, राइट, डोमेन एंड रेंज की, जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग देख लें, राइट? कि मैंने f का फंक्शन जो दिया उसको मैंने दिया 1 2 2 3 3 4 एंड 4 5, एंड g का फंक्शन मैंने दिया 0 4 3 2 4 3 एंड 5, राइट? सो ये अगर मैं चाहता हूं GOFX बने, GOFX, राइट? अब इसको डिफाइन करना है कि ये फंक्शन मेरा क्या पॉसिबल हो सकता है, डिफाइन करें आप। GOFX मतलब GOFX को डिफाइन करें, राइट? तो x की वैल्यूज मैं ड्रॉप करूं और उसके अगेंस्ट में मेरे को जो वैल्यूज आनी चाहिए वो fx की आनी चाहिए, और fx की वैल्यूज जब मैं पुट करूं तो मुझे जो वैल्यूज आनी चाहिए वो g की वैल्यू आनी चाहिए, राइट? सो स्टेप जो हमारे पास होंगे, फर्स्ट स्टेप, डोमेन ऑफ f। f का अगर डोमेन मैं लिखूं तो f का डोमेन मेरे पास है, डोमेन का मतलब होता है फर्स्ट वैल्यू। तो जो मेरे पास x में रिटर्न है उसकी फर्स्ट वैल्यू मेरे को यहाँ दिखाई देगी, राइट? तो फर्स्ट वैल्यूज मेरे पास जो आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4, राइट? रेंज जो हमारे पास है f का, राइट, रेंज जो है वो सेकंड वैल्यू जो आपको दिखाई दे रहा है, राइट, द सेकंड वैल्यू इज कॉल्ड द रेंज। जो मैपिंग हम लोग करते हैं, राइट, बेसिक हमने कई बार ये देखा भी, राइट? तो दिस कमिंग एज 2 3 4 एंड 5, राइट? एंड डोमेन ऑफ g, राइट, यहां दिख रहा है मेरे को, this is 0 3 4 5, and range of is 4 2 3 1 1 2 3 4, जैसे कि आप लिखना चाहते, राइट? ये 1 2 3, राइट? ये डोमेन हमने दिया, डोमेन 1 है, ये रेंज 1 है, ये डोमेन 2 है, ये रेंज 2, राइट? अब मुझे डिफाइन करना है, डिफाइन करना है तो मुझे चाहिए क्या होगा कि मैंने पहले fx का फंक्शन दिया, तो fx का जो रेंज आ रहा है वो g का डोमेन होगा,
जो f का रेंज आ रहा है वो g का डोमेन होगा। मतलब साफ है कि अगर मुझे यहाँ पर कब ये डिफाइन हो रहा है की बात करूं, तो रेंज फर्स्ट का एंड डोमेन सेकंड का, दोनों का जो इंटरसेक्शन है, दोनों में जो मैप कर रहा है, वही वैल्यूज होनी चाहिए। यहाँ पर जो हमारे पास है, रेंज ऑफ फर्स्ट वन इज 2 3 4 5, बट डोमेन जो हमारे पास है 0 3 4 5। तो दोनों जो कॉमन आ रहे हैं, नॉट ऑल द वैल्यूज, मेरे को पूरे वैल्यूज तो नहीं मिल रहे हैं, हाँ, बट ये जरूर आ रहा है 3 4 एंड 5। राइट, ये आपके पास, राइट, डोमेन ऑफ गॉड इज दिस। ओके, पूरा ऐसे पूरे एकदम आराम से रिलैक्स वे में सोचने हैं आप। राइट, ये बी का जो सेट है मेरा, बी जो बनेगा, ए टू बी टू सी जाता हूं, तो बी जो बन रहा होगा 3 4 5। अब डोमेन की बात करें, जो सेट ए के पॉइंट थे हमारे पास, तो सेट ए में कौन से पॉइंट होंगे जिसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज मेरे को मिल रही है। राइट, अगर उसको मैं मैप करूं, राइट, मैपिंग से भी आप जा सकते हो। राइट, उसको मैप करूं तो ए इज, राइट, 2 के अगेंस्ट पर वैल्यूज है, 3 के अगेंस्ट पर 2 to 3 दे रहा है, 3 to 4 दे रहा है, एंड 4 to 5 दे रहा है। तो ए की वैल्यू 2 3 4। ए इज द सबसेट ऑफ D1। राइट, ए सेट ए जो है इज द सबसेट ऑफ डोमेन 1। एंड रेंज जो आएगा वो कौन सा आएगा, सेट सी आने का, ए टू बी टू सी जाना है मेरे को। राइट, जो गॉफ में मेरे पास है, तो सी में मेरे पास कौन सी वैल्यूज आएगी, गॉफ में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, देख के बता सकते हो आप लोग। सर 2 3 1। राइट, 2 3 1, या उसको और अच्छे से बोल दे तो 1। 1 2। ये रेंज है। राइट, एंड किसके करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू आ रही है, तो आप देख सकते हो 2 के करस्पॉन्डिंग 2 आ रही थी वैल्यू, 3 के करस्पॉन्डिंग 3, एंड 4 के करस्पॉन्डिंग। राइट, ये है आपका गॉफ, जिसे मैं चाहूं तो ये सब लैंग्वेज जितना आप ख्याल रखोगे, आपको मेंस के एक क्वेश्चन आपको उतना सेव करेगा। आई होप एवरीवन इज गेटिंग। सर व्हाट इज ए? ए सेट ए, हमने शुरुआत किया था, ओके सर। डोमेन ऑफ फंक्शन का। तो ये बिना मतलब, अगर मैं सबसेट के तरीके से दे रहा हूँ, राइट, एंड उस पर काम करना है, आप चाहो तो उसको मैपिंग से भी देख सकते हो, या एक एक करके इंडिविजुअली भी आप देख सकते हो, दोनों काम आपके पास वर्किंग हो सकते Sir, can you repeat what is A and C here? हैं। दिस वन, A to B to C, so A is the first and C is the last one, means A is the domain and C is the range of it. Okay, Okay. आप मैप करोगे तब भी आपको सेम चीजें दिखाई देंगी। राइट, नोट इट डाउन। ओके, तो ये, लेकिन मैंने एक बेसिक तरीके से आपको क्वेश्चन देने की कोशिश की, जिसमें लाइक वी कैन से कि हमारे पास लाइक डिस्क्रीट वैल्यूज के साथ में वर्किंग हो रही हो, तब क्या हो। मान लो मैंने फंक्शन एफ एक्स को डिफाइन किया, एफ एक्स इज इक्वल टू x+1, एंड यहाँ x की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 2 के बीच में है। फाइंड, पहली बार ये डोमेन के साथ में आया है, f ऑफ f, राइट, यू हैव टू फाइंड f ऑफ f।
Okay, very good. See, करना क्या होता है इन क्वेश्चन में, सिंपली वी रिक्वायर्ड एफ ऑफ एफ एक्स, राइट? तो इन प्लेस ऑफ एक्स आई हैव टू पुट एफ एक्स, लेकिन ये ख्याल रखना कि जितने जगह भी हमारे एक्स गिवन है, सब जगह पर यू हैव टू पुट एफ एक्स, राइट? ना, अच्छी बात ये है कि एफ एक्स जो मेरे पास गिवन है, वो एफ एक्स मेरे पास एक सिंगलटन वैल्यू, राइट? लेकिन ये वैल्यूज कब आ रही है? तो ये वैल्यूज आ रही है व्हेन एक्स लाइन बिटवीन जीरो, राइट? तो अगर मेरे को एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो दिस एफ एक्स इज नथिंग बट एक्स प्लस वन। ये भी मेरे को एक्स प्लस वन लिखना पड़ेगा, कब से कब? 0 to 2। लेकिन व्हेन आई एम राइटिंग दिस एक्स प्लस वन, व्हेन एक्स इज लाइन बिटवीन 0 to, राइट? ये दोनों बातें एक साथ आनी चाहिए, राइट? कब आप लिख सकते हो? तो लिखने के लिए, राइट, 0 to 1 के। ओके, अब एफ ऑफ एफ एक्स इज कमिंग एज x+2, x lying between -1 to 1 and x lying between 0 to। अगर मैं दोनों को एक साथ में लिखना चाहूँ, राइट, एक वैल्यूज मेरे पास -1 to 1 जा रही है और दूसरी वैल्यू 0 से 2 जा रही है, क्या कॉमन डोमेन है जिस पर काम चल रहा है? तो यू कैन सी दिस, राइट, एफ ऑफ एफ एक्स इज x+2 वन एक्स लाइन बिटवीन, दोनों के बीच के डोमेन की अगर मैं बात करूं, दिस इज लाइन बिटवीन 0 to 1। इज दिस ओके? 0 to 1। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द वैल्यू, राइट? आसानी से, कभी कभी ट्रिक होते हैं, छोटी सी बातें होती है जिसमें यूज करने होते हैं, लाइक हाउ टू गो फॉर द फंक्शंस ना। आई होप ये सभी को क्लियर है। आपस में मैसेज मैसेज खेलोगे तो यस सर। क्या? हाँ, कोशिश होनी चाहिए कि क्वेश्चन हम लोग जो दे रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सके। डन। नेक्स्ट, ओके, सो f is defined as 0 to infinity। एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चंस ये चल रहे हैं आपके, कि एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाए। अच्छे क्वेश्चन तो हम लोग, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कर ही लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस हाफ, g इज -1 to 1 to -π/2 to π/2, राइट? gx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। डिफाइन
जी ऑफ एफ एंड डोमेन और रेंज, तो ऑब्वियस सी बात है इसके फाइंड करने की। इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स आ जाए तो वेरी केयरफुल, गलत होने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं ना, थोड़ा सा ख्याल रखना आपको। सर इसमें एफ ऑफ एक्स में जीरो इंक्लूडेड है कि नॉट इंक्लूडेड? नॉट इंक्लूडेड एफ वाले में ना, हाँ सर। नॉट इंक्लूडेड। सर तब तो 1/2 भी तो नॉट इंक्लूडेड होना चाहिए। यही दिया है, बट तुम्हारे विजन ठीक है, बोल सकता हूँ। तो मैं क्या लूं से, मैं इसी को ये करना पसंद करूंगा, ये करना। हाँ, और क्वेश्चन में क्यों रहेगा ये, क्वेश्चन में क्यों आप चाह रहे हो इसको ये ओपन करना, क्लोज रहे तो क्या प्रॉब्लम है? सर जीरो पे एफ की वैल्यू हाफ आ रही है। हम्म। पर तो इस वाले में आप भी कूद पड़े, आप भी फंस गए। जो फर्स्ट वैल्यू होती है ए, वो क्या होता है, डोमेन या कोडोमेन? डोमेन। सेकंड वैल्यू होती है वो रेंज होता है या कोडोमेन होता है? कोड में कोडोमेन और रेंज हमेशा सेम हो, ये कैसे हो? जरूरत नहीं है। राइट, ओपन रहता है या क्लोज, तो डिपेंड करेगा इस क्या आपस में। बस इस थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करो, आई गेस कैलकुलेशन चेक करो, नॉट बैड अमन। सर उसमें वो ब्रैकेट गलत बना है। एक्स की वैल्यूज भी थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, चेक करो उसे। अरे नहीं, आप तो कुछ भी लिख रहे हो बट, ना ना ना, वेट 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 वेट, हमें यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगी बिना कोई दिक्कत का, बड़ा प्यार से आएगा। राइट, हमें गिवन है एफ एक्स, ये गिवन है, और जी ऑफ एफ एक्स निकालना। राइट, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स मेरे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, ये गिवन है मेरा। राइट, और ये वाली जो वैल्यू है ये कहाँ जा रही है, साइन इनवर्स के अंदर जा रही है। मैं अगर सोल्व भी कर रहा हूँ तो जी ऑफ एफ एक्स जो मेरे पास है वो है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस हाफ। राइट, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस हाफ। मैं सिंपल लैंग्वेज में भी बात करूं तो ध्यान दो, यहाँ पर जो ये वैल्यूज है जिसमें जी एक्स जो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ है वो -1 से 1 के बीच में जानी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में जानी चाहिए, है ये। एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ है वो एक्स की वैल्यू 0 से इंफिनिटी पर, मतलब हाफ से लेके आगे तक जाते जा रही है। राइट, हाफ ओपन है, हाफ ओपन से आगे तक बढ़ती जा रही है। राइट, तो दोनों चीज को मैं तो अगर ख्याल पे रखूं, राइट, तो दोनों फंक्शन मेरे पास जो है
तो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -3/2 से हाफ के बीच में है, और यहाँ से एक्स की वैल्यू जो आ गई वो मेरे पास आ गई -1/√2 से +1/√2 के बीच में। बट इसी समय x जो है वो 0 से इन्फिनिटी दिया हुआ है मेरा, मैंने बोला था साथ ही साथ उसको भी लाना है। ये 0 से इन्फिनिटी दिया है, ये -1/√2 से +1, तो दोनों का कॉमन जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 0 से 1/√2, 0 ओपन √2, राइट। ये मेरे पास डोमेन जो हमारे पास आ रहा है, राइट। तो उस समय जब x की वैल्यू ये है, ध्यान से, जब x की वैल्यू ये है तो उस समय एक्स स्क्वायर प्लस हाफ मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही होगी। तो अगर मैं वो देखूं तो 0 पर तो ये हाफ दे रहा है, एंड 1/√2 पर ये 1 दे रहा है, यहाँ ओपन था, यहाँ पर क्लोज था। इज दिस ओके? ये जी एक्स एफ एक्स की वैल्यू है जो जी एक्स में जाने बोल सकता हूं। अब अगर gx में मैं देखूं तो gx में ये डोमेन है gx का, मतलब ये साइन इनवर्स के अंदर कोई जेड मेरे पास है, और जेड की वैल्यूज यहां से आ रही है जो हाफ से लेके 1 तक आ रही है। सो अगर मैं साइन इनवर्स ग्राफ भी ले लूं, या वैसे भी आपको थॉट प्रोसेस है कि साइन इनवर्स की वैल्यू हाफ से लेके 1 तक, हाफ होने पर इसे होना चाहिए π/6, 1 होने पर इसे होना चाहिए π/2। दिस इज योर रेंज ऑफ दिस, राइट। तो डोमेन मेरे पास एक्स की वैल्यू ये थी, एफ एक्स की वैल्यू ये थी, एंड रेंज मेरे पास है। इज दिस ओके? नॉट बैड। सर जीरो पे ओपन क्यों है? 0 पे क्योंकि क्वेश्चन पे दिया है, क्वेश्चन में देखो ना। यस सर। ओके एवरीवन, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को सिंपल कर रखें ना। वेरी गुड, काफी लोगों का सही है, राइट। एक तो ये रहा जिसमें आपको डोमेन को थोड़ा सा ख्याल पे रखते हुए वर्क करना है, दैट्स नॉट अ बिग डील, आसानी से हम लोग आंसर तक आ सकते हैं। दूसरा पोर्शन जो होता है इसमें वो बड़ा प्यारा सा होता है कंपोजिशन पे, जो इन मतलब जो nth फंक्शन तक जाता है, और इसे बोलते हैं साइक्लिक। साइक्लिक होना, साइक्लिक होना मतलब वो आपको फंक्शन कुछ अगर मैंने दे दिया, लाइक रिपीटेड फंक्शन है, रिपीटेड कंपोजिट फंक्शन है, साइक्लिक फंक्शन है, आइटरेशन भी बोलते हैं अलग अलग नाम से। जैसे फंक्शन एक्स है, फिर एफ एक्स होगा, फिर एफ एक्स होगा, फिर एफ एक्स होगा, एंड सो ऑन। आप ये वर्किंग करते जा रहे तो कहीं ना कहीं फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है। अगर मैं ऐसा सक्सेसफुली कर पाता हूँ तो दैट विल वर्क। तो एफ एक्स मेरे पास है 1/1 - x, मान लो, राइट। और मैं चाहता हूँ इसका nth साइक्लिक या nth इटरेशन क्या होगा वो निकाल, मतलब एफ 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 एन टाइम में लगा रहा हूँ तो उस समय मेरा एफ क्या जा रहा होगा, कैसा बिहेवियर शो कर रहा होगा, राइट। तो शुड आई सी दिस, और आप तो ट्राई करोगे एक बार? ओके, आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। ना बहुत सारी चीजें पता चल जाती है ना, इधर उधर मैसेज कर रहे हो आप, इधर उधर लाइक कहानी कुछ जा रहा है। तो निकालना क्या है सर? एफ एक्स 4-5 बार एफ 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 का फंक्शन लगा के देखो क्या आ रहा है। मतलब आपको बोल रहा है कि nth में ये कैसा पैटर्न ले रहा होगा, राइट। nth में ये कैसा पैटर्न ले रहा होगा, तो आपको कुछ उस तरह से लिखना है जिससे पता चल जाए कि एक फंक्शन कैसे बिहेव कर सकता है। मैं सॉल्व करके दिखाऊं क्या? नहीं सर, करते ना। ऋषभ एक बार चेक करो।
वेरी गुड राज। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करो। ना ना ना, ऋषभ एक बार एकदम फिर से स्टार्ट करो उसे। और अब कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, चेक करो। काव्यम वेरी गुड, लेकिन और अच्छा तरीका होगा इसको लिखने का। वेरी गुड, वेरी गुड। हुसैन दिवास, वेरी गुड। आज बार नहीं लगेगा फिसला, एक बार चेक करो। रिसिट वेरी गुड, ये कुछ अच्छा सा आया। प्रत्यूष वेरी गुड। सी ऑलमोस्ट सभी ने काफी अच्छे सा सॉल्व किया है। राइट, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एफ एक्स, अगर मैंने किया तो एक्स की जगह पर आई हैव टू पुट एफ एक्स। एक्स की जगह पर जस्ट आई एम पुटिंग एफ एक्स। तो दिस एफ एक्स, राइट, एफ एक्स इज नथिंग बट 1/1 minus 1 minus x. So this will be 1 minus x upon 1 minus x minus 1, 1, 1 cancel out. So this is x minus 1 by x. This is f of fx is equal to x minus 1 by x. Now, in place of x, again I'm trying fx. So this is fx minus 1 by fx. Fx is again nothing but 1 upon 1 minus x minus 1 upon 1 upon 1 minus x. So I can say this is x. Again and apply, then I'll get something else, right? So 3 times f apply करने पर I'm getting x, right? One time I'm applying f, so this was the function, and 2 बार मैंने f apply किया तो ये function था, and third के बाद ये अपने आप को repeat करेगा। So can I say this कि अगर मैं इस फंक्शन को लिखना चाह रहा हूं तो ये 3 पर, क्योंकि 3 के मल्टीपल पर जा रहा है, सो 1 माइनस एक्स जब n की वैल्यू 3m प्लस 1 के फॉर्म में, राइट, एंड x माइनस 1 बाई एक्स जब n की वैल्यू 3m प्लस 2 के फॉर्म में है, एंड दिस विल बी x जब n की वैल्यू 3m प्लस 3 या 3m के फॉर्म में है, जहां पर m बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इज दिस ओके एवरीवन? नहीं सर, नहीं समझा मुझे। क्या नहीं समझा बता? ये जो ये हम 3m + 1 2 3 कैसे लिखा? कैसे लिखा, ये एक बार जब f लगा था, राइट, तब मेरे पास आया था 1/1 माइनस एक्स, ये क्लियर है, यस सर। राइट। 2 बार f लगा तो हमारे पास फंक्शन आया, ये क्लियर है। हाँ। 3 बार f लगा तो हमारे पास फंक्शन आया x, ये क्लियर है। हाँ सर। 4th टाइम लगाऊंगा तो फिर यही आएगा, 5th टाइम पे ये आएगा, 6th टाइम पर ये आएगा, 7 पर ये आएगा, 8 पर ये आएगा, 9 पर ये आएगा, 10 पर ये आएगा, 11 पर ये आएगा, 12 पर ये आएगा, 13, 14, 15, हाँ हाँ सर। राइट। सो ये अब मैं कितना 13, 14, 15 करता रहा हूँ यार ना, तो मैंने कहा सीधा का सीधा, जब हमारे पास 3m+1 है, ओके ओके, ठीक है, समझ गया। इंटीजर है, तो जितना भी आप करना है करते रहें, आपके पास प्यारी सी सुंदर सी अच्छी सी वैल्यू आती है। ओके सर, समझा। तो ये 3 के मल्टीपल पर पूरी कहानी आपकी वर्क कर रही है। ओके एवरीवन? राइट, now fx is the function given as fx is equal to 2 minus x to the power n to the power 1 by n, where x greater than 0 and n is positive integer, right?
find minimum value of f of fx plus f of 1 by x। देखो तो ट्राई करके, अच्छा सा सिंपल वैल्यू दिया है। वेरी गुड। वेरी गुड एवरीवन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। बिना कोई दिक्कत का सभी को ठीक आ रहा होगा ये, क्योंकि if you will find this, you are getting f of fx is x only and this is 1 by x, and we know that number and its reciprocal always greater than equal to 2. The minimum value of this will be 1. Is this okay? इस फंक्शन को एकदम ख्याल रखना, 2 minus x to the power n, x to the power n is nothing but x to the power n जो हमने लिखा, राइट। x की जगह पर यही पावर 1 by n का पावर 1 by n का पावर n, n कैंसल, राइट, एंड इसका पावर 1 by n। ध्यान से देखो, ये केवल x ही आ रहा है, राइट। ये x आना अपने आप में काम कर गया आपके लिए। ओके, सो ये रिपीटिंग फंक्शन जो होते हैं ना, इसको थोड़ा सा ख्याल रखोगे ना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। हाँ, एक लाइक एक कुछ अलग तरह से क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। f1x को डिफाइन, ऊपर अरे कुछ नहीं किया, ये जो वैल्यू है ना, f ऑफ fx में बैठा दिया उसको, अपने आप वो केवल x टू द पावर n आ गया का पावर 1 by n, तो कैंसिल होके केवल मेरे को x मिल गया। हाँ, और x की जगह 1 by x रखूंगा तो 1 by x मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि दोनों वैल्यूज है ही, बड़ी अच्छी सी वैल्यूज है। नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल का सम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता ही है, तो मैंने कहा that's it, we are getting this ना। f1x, f2x, f3x, f4x, f5x, f6x, राइट, इतना देखो। एंड सपोज f6 fmx is equals to f4x and fn f4x is equal to f3x, right? Find mn। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज में आपको फंसाने की कोशिश है ना, बस आपको फंसना नहीं, थोड़े से पेशेंस के साथ देखोगे तो सामने दिखाई देगा। सर वो क्या लिखा है F6 के आगे आपने? f6x is equal to x minus 1 by x।
वेरी गुड अविराज। आओ देख लें साथ में। एम मिल गया एन नहीं मिल रहा। खोजो खोजो, मिलेगा मिलेगा आजू बाजू में। एम, ये इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने किया, राइट? सो मे बी थोड़ा सा वर्किंग पर है बस। वेरी गुड एवरीवन। वेरी गुड आशुतोष, कनक, वेरी गुड बहुत अच्छी। मैं स्टार्ट करूं? ऋषभ वेरी, बस एक मिनट। Pratika, very good. Pratyush, Devraj, Abhishek, Mahek, very good. Tejas, Aman, Mutusai, and check करो Mutusai, and Mahek, very good. Zenma, very good. Right? तो आई होप कि इतनी बड़ी दिक्कत नहीं जा रही, क्योंकि आई गेस करीब करीब सभी लोगों के आंसर्स आ गए हैं। सीता, वेरी गुड। हाँ, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बस केवल ऑब्जर्वेशन आपका सही होना चाहिए। क्षितिज, वेरी गुड, बहुत अच्छी। राइट, केवल ड्यूरेशन का बात है, आपको थोड़ा सा रिपीट कर। कौन सा मैं करूँ, फर्स्ट या सेकंड? कौन सा? सेकंड। सेकंड। दिक्कत जा रही? मेरे को गिवन है एफ एन, चल देखते हैं। एफ एन एफ फोर इज इक्वल टू एफ थ्री एक्स, राइट? एफ थ्री एक्स इज वन बाई एक्स, और एफ एन एफ फोर मेरे पास था वन अपॉन वन माइनस एक्स। इसकी वैल्यू वन बाई एक्स आनी चाहिए, राइट? इसे मैं, चलो ऐसा ही रखता हूँ, वन अपॉन वन माइनस एक्स को ही टी ले लेता हूँ। तो वन बाई टी इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, और एक्स इज इक्वल टू टी माइनस वन बाई एफ एन टी इज इक्वल टू सिंपली टी अपॉन टी माइनस वन, राइट? ठीक है ना? जो कि मेरा कौन सा होगा, एक्स अपॉन करूं तो ये एफ फाइव टी होगा मेरे पास, राइट? तो एन की वैल्यू क्या है, फाइव है। डायरेक्ट तो नहीं, ठीक है ना? सर एक मिनट। ओके, हाँ सर। ठीक है ना? एक लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे कंसेप्ट पर। एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है, राइट? एंड यू नो एफ ऑफ ये भी है, एफ एन एक्स को लिखने का तरीका ये, राइट?
आपको फाइंड करना है एफ ऑफ 2024x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देते ही आपको निकल जाए। बस इस थोड़ा सा ध्यान से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया है, अब बना ले रहे हो आप। ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है। देखो तो कितनी बार फंक्शन को आपने अगर यूज किया तो क्या आ रहा है। पहले एफ ऑफ एफ एक्स निकालो, राइट, 2 बार लिया तब क्या आया। फिर एफ ऑफ एफ एक्स निकालो, फिर 4 बार ले लिया, फिर हमने देखा क्या आ रहा है। बस इतने में तो काम बन जाना चाहिए। तो एफ ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स -1 अपॉन एफ एक्स प्लस एक्स की जगह रख दिया एक्स -1/x+1 -1 x -1/x+1 +1, right? So this will be -2 upon 2x, right? ये तो खत्म हो गया यहाँ पर कहानी, राइट। मैं सिंपली बोल सकता हूँ, अब इसको अगर मैं फंक्शन लेते हुए चल रहा हूँ तो अगर मैं 4 बार लगाऊंगा तो आई एम गेटिंग एफ एक्स इक्वल टू एक्स। मतलब हर एक फोर्थ के बाद में मुझे मालूम भी नहीं कि बीच में क्या आ रहा है, और मुझे ये जरूरत तीसरे बार में होगा। है। एफ ऑफ मतलब 3 एफ के बाद एक्स आ रहे हैं। कुछ गड़बड़ हो रहा हाँ है। सर। हाँ, चेक करो, शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है। सिक्स और उसमें तो टाइम तीसरी पे बार में करा। तो x+1 अपॉन x-1 आ रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। चौथी बार में ये आ रहा है ना, फोर्थ टाइम में आ रहा है। मुझे भी दिया हुआ है 2024 जो 4 से डिविजिबल है, राइट। हाँ ओके सर सर। तो चौथी बार में भी नहीं आ रहा। भाई फोर्थ में आ रहा है ना, हाँ सर आ रहा है। सिंपल आएगा। देखो तो कैंसिल हो रहा है ना, ऊपर में एक्स आ रहा है, नीचे में 2 आ रहा है, माइनस साइन भी कैंसिल हो गया है। अरे उसको भी मत देखो ना, मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ एफ एक्स -1/x आया है, इसको मान लो जी एक्स है, जी ऑफ जी एक्स क्या आता है, -1/-1/x, तो वो x हो जाता। मैं बोल रहा हूँ जी एक्स को अज्यूम करो -1/x है, तो जी ऑफ जी एक्स क्या आएगा, -1/-1/x, दैट इज x ओनली। हम्म। 2 बार है तो जी ऑफ जी एक्स कितनी बार हुआ, 4 बार हुआ, राइट। तो 4 Yes. बार हुआ तो 2024 में ये सिर्फ x देना चाहिए, राइट। एकदम बेसिक क्वेश्चन था, राइट।
सो एक चीज तो ये पहला क्लियर कि हाँ, ये जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अपने आप में ये क्वेश्चन हर जगह पर यूज हो सकते हैं, राइट। तो आपको ये जरूर ख्याल पे रखना है, राइट, ये जरूर ख्याल पे रखना है कि अगर इस तरह से एनथ टाइम वगैरह दिया हुआ है फंक्शन, तो मान के चलो कि वो सॉल्वेबल है। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा रिलैक्स रहो, 100% ये आंसर देगा। फर्स्ट, खत्म करें इसको। सेकंड, अब दूसरा काम हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं, जब कंपोजिट फंक्शन हमें निकालना है पीस वाइज, और फंक्शन जो गिवन है वो पीस वाइज फंक्शन गिवन है, तब कैसे करें, राइट। तो इस बीच में मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा सभी से, सब लोग कैमरा अपने अपने ऑन रखो। हाँ, मैं भी मोटिवेटेड रहूंगा आप लोग के साथ साथ। ओके। हम्म। सो फंक्शन अगर मेरे को गिवन है पीस वाइज एंड वहां पर मुझे काम करना है, सो लेट एक छोटा सा ही फंक्शन से शुरुआत करता हूँ। इससे 1 + x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 - x, x लेस देन 0, एफ एक्स ये दिया हुआ। वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स। ये मैं करूं या आप लोग ट्राई करना चाहोगे? ट्राई करेंगे सर। अभी try। वेरी गुड, गुड फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड अविराज, सिन्हा, वेरी गुड। कशिश, और थोड़ा सा, और थोड़ा जाओ इसका, और थोड़ा सा। काव्यम, वेरी गुड। तेजस, ये बच रहा है आशुतोष। कैलकुलेशन, आई गेस थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करो, या शायद वो बोल रहे वो ठीक भी हो सकता है, देखना पड़ेगा। चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन।
ओके ओके, कनक वेरी गुड, कनक वेरी गुड। सी, तो करना क्या है, सिंपल से इक्वेशन को, राइट, मुझे हर एक x की जगह पर fx पुट कर देंगे, तो देन दिस विल बी f ऑफ fx। हर एक x की जगह पर मैंने fx पुट कर दिया, हर एक x की जगह मैंने fx पुट कर दिया। नाउ सिंस fx इज नॉट द सिंगलटन सेट, तो पहले मैं ये वैल्यू लूंगा तो उसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी जाएगा, सेकंड वैल्यूज लूंगा तो उसमें x लेस देन इक्वल टू 0 भी जाएगा। राइट, दोनों को एक एक करके रख देता हूँ। राइट, बहुत ही सिंपल सी बात, 1 प्लस एक्स, 1 - 1 - x, और यहाँ से आया 1 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 + x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। So this is 2 + x and this is -x. From this I'm getting x greater than equal to 0, x greater than equal to -1, तो दोनों को मिला दो तो x greater than equal to 0 काम कर रहा है। यहाँ x greater than 0, x less than -1, तो यहाँ नल सेट है, तो मेरे को एक वैल्यू तो यहाँ से मिली। सिमिलरली दूसरी बार में सेकंड वाली जो मैंने वैल्यूज दी थी उसे पुट कर देता हूँ, 1 - x, राइट। तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि सेकंड वाले से सेकंड फंक्शन मेरे पास आएगा, और 1 - x रखने पर यह आएगा 2 - x, तब जब x लेस देन 0 होगा। तो दोनों को मिला के मैं बोल सकता था 2 + x 1 x greater than equal to 0 and 2 - x 1 x less than 0. This is f of x, राइट। ये कंपोजिशन, इसको ग्राफिकल भी हम जा सकते हैं, विदाउट ग्राफ भी जा सकते हैं, दोनों तरीका हो सकता है। राइट, बेसिक सॉल्व। राइट, इसके क्वेश्चन काफी लंबे बड़े से जाते हैं, बट है सिंपल सी बात, थोड़ा सा, राइट, आप अगर ध्यान से रखो तो काफी कुछ इसमें वर्किंग हो सकती है। राइट, इसके क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगा, थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत होगी, और एक मिनट दिखाना। सर कहीं एक कंफ्यूजन, डाउट है मुझे, हाँ पूछ लें प्लीज। हम लोग जब x इज ग्रेटर देन 0 का जब केस बनाया हम लोगों ने, तो एफ ऑफ एफ एक्स में जो सेकंड वाला केस था जहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 हम लोग ने जहाँ पे लिखा, उसको मैंने कंसिडर नहीं किया था सॉल्विंग करते समय, एंड आंसर तो सही है, बट वो गलती हो गई क्या वहाँ पे, मतलब हो सकता है कि वहां से आंसर। 4 फंक्शन हो सकते, वो हमेशा पूरे केस में, हाँ, गलत हो जाए। यस, कैसे, सर हाँ, सर ये सेकंड वाला पार्ट कैसे है, x लेस देन 0 वाला? x लेस देन 0, उस समय फंक्शन मैंने दूसरा वाला फंक्शन ये रखा बेटा, दोनों में 1 - x इसमें रखा, -x होगा, यहाँ भी 1 - x रखा, और x लेस देन इक्वल टू 0 रखा। अच्छा ओके सर। सेकंड रखा तो फर्स्ट वाला तो नहीं आया, सेकंड वाले से फंक्शन मेरे को मिला। हाँ सर। ठीक है ना, इसमें काफी हाँ सारी वेराइटी होती है। तसेस क्या सर वो पूछ रहे थे? हाँ, सर वो 2 - x वाला हमको इससे आया ना, x शुड बी नेगेटिव एंड f ऑफ x शुड बी पॉजिटिव, तो हम्म, फिर अगर उसको भी सॉल्व करेंगे तो x शुड बी मोर देन 1, कोई नहीं सर, लेस x देन शुड बी लेस देन 1 आ रहा था, और x शुड बी मोर 0। देन 0, तो उसके लिए 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। सेकंड केस ये है ना, ये सेकंड केस है 1 - x ना, तो 1 - x में दोनों में रखूंगा, इसे इसे ओमिट कर, या देख लो, 1 - x में दोनों में रखूंगा, तो 1 + 1 - x, 1 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 - 1 - x तो प्लस हो गया, और 1 - x लेस देन 0 कब, जब x लेस देन 0, x लेस देन, ये, ठीक है। इसमें मैं देखूं तो ये आ गया 2 - x, x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x लेस देन 0, दिख रहा है। और 1 से लेसर और 0 से लेसर को मिला के क्या बोलूं मैं, 2 - x बोलूं, यही बोल रहा हूँ। यस सर, ठीक है यस सर। ना। तो इसके क्वेश्चन जैसे मैंने कहा कि काफी सारे होंगे जो हम लोग अलग से काम करते हैं ना। कंप्यूटर फंक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह होगी जो आपको बार बार यूज करनी पड़ेगी,
जिसमें कभी कभी आपको दिक्कत होने के चांस होते हैं। जैसे मैं बोलूँ ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, इसका ग्राफ बना y इज इक्वल टू 2 to the power sin x, राइट। और y इज इक्वल टू 2 to the power sin x का ग्राफ अगर मुझे ड्रॉ करना है, क्या कंसिडर करूं और कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाए, राइट। ध्यान दें, डोमिनेंस जो यहाँ पर है वो हमारे को डोमिनेट कर रहा है, वो साइन एक्स ही कर रहा है ना। अब ये साइन एक्स मेरे को डोमिनेट अगर कर रहा है एंड इसके साथ में मेरे को ग्राफ बनाने हैं, तो 0 पाई 2 पाई, मान लो यहाँ तक रखता हूँ क्योंकि 2 पाई के बाद तो ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा, राइट। इसके बीच में कहीं यहाँ पर पाई/2 होगा, ये पाई है, ये 3 पाई/2 है, ये 2 पाई, राइट। अब 0 पर 2 to the power 0 द वैल्यू विल बी 1, राइट। एंड पाई/2 पर वी आर गेटिंग सम वैल्यू, ऑब्वियसली साइन का वैल्यू जा रहा है तो 2 to the power 1 विल बी 2, दिस विल बी 0 comma, दिस इज 0 comma 1 एंड दिस इज समवेयर 0 comma 1/2, क्योंकि पाई पर तो ये फिर से मेरे को यहीं पर वैल्यूज मिलेगी, लेकिन 3 पाई/2 पर ये हाफ पर चला गया, देन 2 पाई पर फिर यहाँ पर, मतलब ग्राफ जो है ये कुछ साइन का जैसा ग्राफ बनता है, वैसे ही थोड़ा सा कुछ स्टिफनेस के साथ। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 to the power sin x, इज दिस ओके। बहुत सारे कंपोजिट ग्राफ्स जो होंगे वो हो सकता है आपको अच्छे से यूज कर जाए, राइट। बहुत सारे कंपोजिट ग्राफ्स हो सकते हैं, तो इनको बनाने के लिए थोड़ी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, एंड इतनी बड़ी भी बात नहीं है, बट ख्याल की जरूरत है, ओके। एक आप ग्राफ जल्दी से सब लोग ट्राई करो, साइन के साथ ही देता हूं, y इज इक्वल टू लॉन ऑफ साइन एक्स, ट्राई करो तो उसके बाद मैं बताता हूं। y इज इक्वल टू लॉन ऑफ साइन एक्स, क्या ग्राफ पॉसिबल? डन। यस सर। यस सर। लॉन ऑफ साइन एक्स, फिर वही काम है आपका, लॉन का ख्याल पे रखते हुए साइन एक्स का ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ करना है ना। जीरो पाई 2 पाई, सिंस वी नो दैट कि साइन का ग्राफ लॉन के साथ में है, लॉन ऑफ साइन एक्स, जब भी साइन एक्स मेरा नेगेटिव होगा तो ये ग्राफ डिफाइन ही नहीं होगा, राइट। मतलब साफ है कि पाई से 2 पाई में तो मेरे को ग्राफ यहाँ पर मिलेगा ही, राइट। इस जगह पर तो ग्राफ ही नहीं मिलेगा, जो ग्राफ मिलेगा वो 0 से पाई में मिलेगा, एंड पाई/2 पर आई नो कि दिस विल बी 1, लेकिन लॉन साइन एक्स की वैल्यू क्योंकि 0 से 1 होती है, और लॉग 0 से 1 पर हमेशा नेगेटिव होता है, ये ग्राफ बना, और यही ग्राफ जो है अपने आप को रिपीट करता जाएगा हर एक 2 पाई के बाद, राइट।
Is this okay? समझ में आई बात? हाँ सर। अगर मैं थोड़ा सा और इस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहूँ, राइट, क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल सा ग्राफ दिखने लग गया ना। अगर मैं इसी में y इज इक्वल टू लॉन्ग का ही ग्राफ दूं, लेकिन अंदर पे एक फंक्शन दे दूं 4x माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये ग्राफ दूं, इसका ग्राफ क्या होना चाहिए, क्या लगता है? टेक योर टाइम एवरीवन, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, तो ध्यान से। वेरी गुड, बैड। ठीक है, ठीक। 4x माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख लूं, ये प्लस -4 + 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इन द लॉग, नहीं? इसका डोमेन जो है वो दिखाई दे रहा है कि ये 0 से लेके 4 के तो बीच में ही, राइट, और इस बीच में जब ये 0 होगा तो उस समय आई एम गेटिंग वैल्यू 4। सो इन बिटवीन, राइट, 0 जब ये अप्रोच कर रहा होगा तो माइनस इन्फिनिटी, 4 अप्रोच कर रहा होगा तो माइनस इन्फिनिटी, एंड ग्राफ का नेचर कुछ इज दिस ओके? नहीं सर, ये नीचे वापस क्यों गया, नहीं समझ नीचे वापस क्यों गया मतलब? log 0 प्लस की वैल्यू कहाँ जाती है? log 0 प्लस कहाँ जाता है? माइनस इन्फिनिटी। अगर ये जो वैल्यू है ये 0 को अप्रोच कर रही है तो log की वैल्यू कहाँ जाएगी? 0 प्लस पे ये जा रहा अगर है तो हाँ वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जाएगी, तो देखो ये माइनस इन्फिनिटी गया, राइट। कहीं पर ये जब ये पॉजिटिव है, राइट, नंबर 1 से बड़ा तो है ये, क्योंकि ये 4 तक जा रहा है, राइट, x इज इक्वल टू 2 पर दिस इज गोइंग टू 4, मतलब नंबर तो 100% ये है कि ये वाली जो वैल्यू मेरे पास है, राइट, 2 पर, ये वैल्यू मेरे को 4 दे रहा है, राइट। मतलब साफ है कि यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू तो बड़ी है, राइट। तो कहीं यहाँ पर 1 और ये वाली वैल्यू होगी, इसके नीचे पे ये नेगेटिव 4, यही काम किया हमने। ओके, सर, मैंने क्या किया ना, अंदर जो क्वाड्रेटिक है उसको डिफरेंशिएट करके उसका मिनिमा मैक्सिमा निकाला, और देखा कि वो माइनस इन्फिनिटी से 4 तक वो वैल्यूज ले रहा है। तो अब लॉग तो माइनस वैल्यूज नहीं लेता, तो 0 से लेके 4 तक का मैंने लॉग का ग्राफ बना दिया। इसमें क्या गलत किया मैंने? बहुत सारी गलतियां हो गई। आपने तो केवल ये बता दिया कि उसका रेंज कहाँ पर होगा, आपने 4 माइनस एक्स स्क्वायर का नेचर तो ख्याल में ही नहीं रखा। 4x माइनस एक्स स्क्वायर जो है उसका नेचर क्या हो रहा है वो तो यहाँ पर ख्याल पे ही नहीं रहा मेरे, नहीं। वो तो अपने आप में पैराबोल, मैं बोलूँ कि इसका ग्राफ भी नहीं मैं बनाता, मैं केवल बनाता 4x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता वो क्या, अगर उसको केवल मैं सोचूं तो 0 से 4 के बीच में डाउनवर्ड पैराबोला, ऐसा पैराबोला बनता। हाँ
तो मैं क्या बोल रहा हूँ इन बिटवीन कि ये जो जीरो के नीचे ये है और ये है, इसको तो मैं कंसीडर करूंगा ही नहीं। मैं ग्राफ हाँ केवल और केवल देखूंगा जब ये जीरो से लेके फोर के बीच में, जीरो से फोर के बीच में ही ग्राफ मेरा बनेगा, क्योंकि उसी समय ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। अब ये हाँ पॉजिटिव वैल्यूज अगर मेरे पास है और ये जीरो को अप्रोच कर रहा है ये दोनों तरफ से यहाँ पर, तो मैं बोलूंगा जो जीरो को अप्रोच कर रहा है वो माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, और ये भी माइनस है, और क्योंकि सिमेट्रिक है तो ये टू पर सिमेट्रिक होते हुए ये ग्राफ बन रहा होगा। अब ये ऊपर जा रहा होगा या नहीं, वो मुझे कैसे पता चल सकता है, तो वो वैल्यू से पता चल सकता है। तो मैंने देखा कि x इक्वल टू टू पर दिस इज दिस विल गिव यू द वैल्यू फोर। लॉन फोर विद बेस ही हमेशा वन से तो बड़ा ही है, मतलब वैल्यूज थोड़े तो हमारे पास से रहेंगे जो ऊपर आ रहे हैं, राइट। तो पॉजिटिव वाले वैल्यूज को वहां से, ओके सर, समझा। थैंक यू। ठीक है ना। इसी में कंपोजिट फंक्शन में, राइट, ये कुछ बातें जो हम लोगों ने रखी। इसके बाद कुछ जब मिक्स हम लोग कर लेते हैं इसी कंपोजिट फंक्शन को, जैसे फर्स्ट, राइट, कंपोजिशन ऑफ वन टू वन फंक्शन, function is always one. Is this okay? Composition of two onto function is always onto, right? ये ख्याल रखना, ये हो सकता है आपको काफी अच्छा यूज करवाए, राइट। सर आपने सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? सेकंड वाले में कंपोजिशन ऑफ टू ऑन टू फंक्शन इज ऑलवेज ऑन, राइट। दो फंक्शन जब रहेंगे ऑन टू वाले तो वो हमेशा ऑन टू हो जाएंगे। तो बड़ा अच्छा से कंपोजिशन भी बड़ी अच्छी से बनती है, तो ख्याल पे जो रखना ही है, एंड इसको यूज भी करते जाएंगे हम लोग। ओके, डन एवरीवन। लिख लिया सबने? वैरायटी काफी सारी आती है, बट ख्याल रखना इनके कंपोजिशन को यूज करके आप बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, राइट। तो कंपोजिट फंक्शन में हो सकता है आपको डिफरेंट वैरायटी के जो क्वेश्चन मिल रहे हो, उसमें हमने यहाँ पर अगर ध्यान दो तो अभी तक कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट वगैरह मैंने नहीं डाला। हाँ, मैं अभी जस्ट आपको नीट एंड क्लीन जो होते हैं कंसेप्चुअली आपको समझ में आ जाए क्या होगा, उसके लिए जो भी मतलब जितने भी पॉसिबिलिटी है उसके मैंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिया आपको। तो आई होप इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। एक बार चेक कर लो, कहीं दिक्कत हो, यू वांट टू आस्क एनीथिंग तो प्लीज आप पूछ लें।
एक जगह डाउट था ऊपर मुझको। बोले क्या चीज? बोले। जो हमने ग्राफ से पहले जस्ट क्वेश्चन किया था जिसमें एफ ऑफ एक्स 1 + x और 1 - x दिया था अलग अलग एक्स की कंडीशन पे। हम्म। तो उसमें एक जगह मतलब फाइनल रिजल्ट में हम लोग को x > 0 के लिए 2 + x आया था फंक्शन, एंड 0 से 1 के बीच में मुझको 2 - x आया फंक्शन। हम्म। तो फिर इसके आगे क्या करूंगा मैं? बस वही फंक्शन आ जाएगा, वही हम लिख देंगे। अब उसमें क्या बोलता है वो सॉल्विंग के लिए, सॉल्व फॉर एक्स, राइट। ये मैंने एक फंक्शन दे दिया, सॉल्व फॉर एक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा ध्यान देने का है। वेरी गुड काव्यम, और भी चेक कर लो, और भी कुछ तो नहीं है। तो सही, वेरी सही, वेरी गुड आरव, वेरी गुड। डन एवरीवन, कनक वेरी गुड। देख, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे, ये अगर एफ एक्स है तो ये एफ इनवर्स एक्स है, या मैं ये बोल सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स करूंगा तो यही मेरा एक्स है, राइट। एफ ऑफ एक्स करूंगा अगर दोनों तरफ तो यही मेरा एक्स आ रहा है। ये आने का मतलब हो गया कि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स, और अगर क्योंकि ये एक दूसरे का इनवर्स गिवन है तो जो सॉल्यूशन होता है वो दो जगह पर होता है, जो हम लोग इनवर्स में भी पढ़ेंगे ना। एक तो हमारे पास y इजिकल टू एक्स लाइन पर होता है, राइट, y इजिकल टू एक्स लाइन होगा उस पर मिलेगा। दूसरा ये होता है x प्लस वाई इजिकल टू ए पर, राइट। तो यहाँ फॉर्चुनेटली आपको x² - x+1 इजिकल टू एक्स करने पर, क्योंकि y इजिकल टू एक्स मेरे पास है, x² - 2x+1 इजिकल टू 0, x की वैल्यू रिपीटेड रूट्स करते हुए सीधा आपको मिल रहा है, दैट इज
x is equal to 1 is the solution. Is this okay? Right? Sir, x plus y is equal to 0 वाली लाइन पे ये जो लाइन होती है ना x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, ये इसके अबाउट भी सिमेट्रिक हो सकता है इनवर्स फंक्शन, राइट? सो आईआईटी में बहुत अधिक इससे क्वेश्चन फ्रेम नहीं करता, बट ये पॉसिबिलिटी है, राइट? वो इनवर्स वाले में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस बात को, राइट? और एक होमवर्क आप लोगों के लिए, एफ ए टू ए फंक्शन गिवन है, राइट? आपको नंबर ऑफ फंक्शन बताने हैं एफ ए टू ए जब एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाए, जहां पर ए जो आपके पास है वो है 1 2 3 एंड 4, राइट? ए जो वैल्यूज है 1 2 3 एंड 4, 4 वैल्यूज के लिए है। एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास है वो एक्स होनी चाहिए, राइट? एंड मैं अभी क्वेश्चन आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो क्या निकलना है सर? नंबर ऑफ फंक्शन कितने पॉसिबल है, ओके? एंड रिकॉर्डिंग भी थोड़ी देर में दे, ठीक है? सर एक डाउट था